Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In our last discussion, we introduced methods that are required to determine whether a given infinite series is convergent or not. Before this discussion, we introduced the idea that given any infinite series, u1 plus u2 plus u3 un, whether this add up to a finite number or not, उसके लिए हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था कि we made a sequence of partial sums. And that was based on the idea the first partial sum is only one first term, whereas second partial sum is first two terms added together. The third partial sum is the first three terms added together. In fact, what we did, we converted the infinite series into an infinite sequence. And since we know how to determine convergence or divergence of infinite sequence, so we say that this infinite sequence means nothing but this infinite series. यानी n से लेके infinity तक अब सारे numbers add कर दो, so that is the infinite series. So if this sequence converges to some number L, we say that this series converges to that number. And if this series is divergent, the sequence is divergent, so this series is also divergent. And we discussed some examples where we had different ways of making a sequence of partial sums, and that made it very complicated. We have to develop some methods in which we don't need to make a sequence of partial sums in order to explore whether a given infinite series is convergent or divergent. So the first test that we discussed last time was divergence test. Now this says that मेरे पास कोई भी infinite series है, which is sum of infinite number of finite real numbers. हमने इस डिस्कशन में अपनी फोकस जो रखा वो पॉजिटिव टर्म सीरीज यानी un हर टर्म जो है u1 u2 u3 ये सब पॉजिटिव नंबर्स हैं. डाइवर्जेंस टेस्ट ये कहता है कि अगर तुम जनरल टर्म का फॉर्मूला जो तुम्हारे पास आए किसी इन्फिनिट सीरीज का उसकी लिमिट calculate karo at n approaches infinity. If that limit is not equal to 0, then the series is divergent. But if you find this limit to be 0, then the series may diverge or may converge. So that is not conclusive. So that was the first test that we explored last time for convergence of infinite series. And then we discussed the proof of this. And then we discussed the algebraic property. अगर दो sequences converge करती हैं उनका तो sum लोगे तो वो भी converge करेगा और difference लोगे तो वो भी converge करेगा. If you have a non-zero constant, किसी series से तुम constant को multiply करोगे तो अभी भी उसकी convergence या divergence जो है उसको कोई तब्दीली वाक़या नहीं होगी. We say that its behavior will not change. If both series are convergent or both if summation un and summation I don't remember what I wanted to say.
यहाँ पे ये था कि सीरीज तो एक ही है, मगर ये सीरीज शुरू हो रही है U1 से और ये सीरीज शुरू हो रही है किसी U3, U4, U5, U10 से, यानी कुछ टर्म्स इसमें से उड़ा दी इस सीरीज में से। इस केस में भी कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हमने सीक्वेंस के बारे में इस तरह का रिजल्ट डिस्कस किया था कि अगर एक सीक्वेंस इन्फिनिट सीक्वेंस है, उसमें से फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दें या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दें, तो अगर सीक्वेंस कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट रहेगी। इसी तरह इन्फिनिट सीरीज में भी यही सूरत हाल है। दिस थर्ड पॉइंट इज इनफैक्ट टेलिंग अस के अगर किसी इन्फिनिट सीरीज में से मैं एक फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स निकाल दूं या फाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स ऐड कर दूं, तो अगर कन्वर्जेंट थी तो कन्वर्जेंट रहेगी, डाइवर्जेंट थी तो डाइवर्जेंट रहेगी। And then we came to one of the fundamental tests for convergence or divergence of an infinite series named Cauchy integral test, which says that आपके पास एक पॉजिटिव टर्म सीरीज है, उसके अलावा आपके पास एक फंक्शन है जो कि डिक्रीजिंग है। डिक्रीजिंग होने के साथ साथ द फंक्शन इज कंटिन्यूस ओवर द इंटरवल 1 to infinity such that के at integral input यानी x is equal to 1, x is equal to 2, x is equal to 3, the function output is same as the term of the series. So f1 will be u1, f2 will be u2, f3 will be u3 and so on. तो अब अगर मुझे इन्फिनिट सीरीज इस इन्फिनिट सीरीज का बिहेवियर चेक करना है, तो मैं इसके बजाय इस इंटीग्रल का बिहेवियर चेक करूं। ये इम्प्रॉपर इंटीग्रल है और आपको पता है वी हैव स्टडीड इम्प्रॉपर इंटीग्रल एंड इट्स कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस। तो अगर कॉरस्पॉन्डिंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल यानी टर्म से फंक्शन बनाया, फंक्शन को इंटीग्रेट किया इन द लिमिट ए सम फाइनाइट नंबर टू इन्फिनिट नंबर और 1 to infinity, अगर ये इंटीग्रल कन्वर्जेंट है तो सीरीज कन्वर्जेंट होगी, अदरवाइज डाइवर्जेंट होगी। We discussed the proof of this last time, which is in the recording lecture, and we summarized that this integral and this series are both convergent or both divergent if function f is continuous decreasing on the interval 1 to infinity, and at integral inputs fn is equal to the term of the sequence corresponding term of the sequence. एंड देन रिमेंबर दैट ये हार्मोनिक सीरीज हमने डिस्कस की थी और इसमें हमने बड़ा अजीब तरीके से एक पार्शियल सम बनाया था, सीक्वेंस में पार्शियल सम बनाई थी, जिसपे आपके कुछ साथी बहुत परेशान हो गए थे कि यार ये क्या है, बड़ा मुश्किल हो गया और पढ़ाना पढ़ाना। now we see that to explore the behavior of this series, we make a simple function 1 upon n की जगह 1 upon x कर दिया। 1 upon x का इंटीग्रल ln x है। In the limit 1 to m, we get ln m minus ln 1, and when m approaches infinity, तो हमारे पास ये improper integral है। So log infinity is infinity, infinity minus 0 infinity, that means the integral is infinite. This improper integral corresponding to this infinite series is infinite. So since the integral is divergent, the series has to be divergent. So this is much simpler way of exploring the nature of a series being convergent or divergent. इसी तरह हमने और example discuss की थी. We also discussed a p-test using the Cauchy integral theorem. हमने एक general series ली 1 upon n raised to power p. N values are 1, 2, 3, 4. P is a fixed real number. और हमने ये देखा कि p की वैल्यू अगर 1 है तो सीरीज बनेगी ये which is divergent. If p is greater than 1, then the series comes out to be convergent, and if p is less than 1, the series comes out to be divergent. तो ये p टेस्ट भी कहलाता है, p सीरीज ऐसी सीरीज जो है वो p सीरीज भी कहलाती हैं। p टेस्ट is helpful to us in many senses. The overall message of the p test is कि अगर मेरे पास इस तरह की एक इन्फिनिट सीरीज है, p की वैल्यू 1 होगी तो इन्फिनिट सीरीज डाइवर्ज करेगी, p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 होगी तो सीरीज कन्वर्ज करेगी, अगर p की वैल्यू लेस देन 1 होगी तो सीरीज डाइवर्ज करेगी।
ये थ्योरम मैंने डिस्कस नहीं की थी एंड आई रीच दी एक्सरसाइज 9.4 और 9.4 के कई सवालात मैंने सॉल्व किए हुए हैं, शायद पूरी एक्सरसाइज सॉल्व की भी हो। यूज थ्योरम 9.4.3 to find the sum of each of the series. Now what is 9.4.3? 9.4.3 is कि अगर दो सीरीज कन्वर्ज कर रही है उनको ऐड करो सब्ट्रैक्ट करो तो क्या होगा, ब्ला ब्ला। तो हम यहाँ देख रहे हैं कि जो सीरीज के क्वेश्चंस हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में जितनी सीरीज दी नहीं है ना, दिस सीरीज जिसमें पहली टर्म ब्रैकेट के हिसाब से 1/2 प्लस 1/4 है, जबकि दूसरी टर्म 1/2 स्क्वायर प्लस 1/4 स्क्वायर है। तो हम ये ऑब्जर्व करते हैं कि ये सीरीज जो है वो दो सीरीज का सम है, एक जिसमें डिनोमिनेटर में 2 की पावर आ रही है और एक जिसमें डिनोमिनेटर में 4 की पावर आ रही है। ये दोनों ज्योमेट्रिक सीरीज हैं। यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/2 है तो कन्वर्ज करेगा, यहाँ पे कॉमन रेशियो 1/4 है तो कन्वर्ज करेगा। ज्योमेट्रिक सीरीज हमने पिछले लेक्चर से भी पिछले लेक्चर में डिस्कस की। So whenever in a geometric series, infinite series, common ratio is less than 1, the geometric series converge. Similarly, in the second question, we found that this is the difference of two infinite series, one जिसमें 1/5 raised to power n है, जो कि दूसरी is summation 1/n into n plus 1 है। ये ज्योमेट्रिक सीरीज है, इसको मैंने सॉल्व नहीं किया, सिर्फ ये बता दिया कॉमन रेशियो 1/5 है, ये कन्वर्ज करेगी। और ये टेलीस्कोपिक सम है, और टेलीस्कोपिक सम के लिए हमने यहाँ थोड़ी तफसीलात डिस्कस की हुई है कि 1/n प्लस n इंटू वन n प्लस 1 पार्शियल फ्रैक्शंस के जरिए हम इसको यूँ लिख सकते हैं 1/n माइनस 1/n प्लस 1। अब अगर n इज इक्वल टू 1 के लिए लिखेंगे तो ये आएगा, n इज इक्वल टू 2 के लिए लिखेंगे तो ये आएगा, सो ऑन सो फोर्थ। इसको टेलीस्कोपिक सम इसलिए कहते हैं कि इसकी सारी टर्म कैंसिल होती चली जाती हैं सिवाय फर्स्ट टर्म के। तो दिस सीरीज सम अप टू ओनली 1। सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है मैंने, आप लोग देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4 पी सीरीज। तो मैंने यहाँ पे सिर्फ ये इंटीग्रेट किया हुआ है in 3a 1/k raised to power 3, so value of p is 3, 3 is greater than 1, greater than 1 means convergent. Here 1/k raised to power half, so value of p is half, so divergent. In 5 and 6, these questions we are required to apply divergence test. Now, what was divergence test? Divergence test ये था कि आप general term की limit consider करें। Now this is the general term, k square plus k plus 3 upon 2k square plus 1। तो लिमिट निकालते हुए हम क्या करते हैं, के स्क्वायर ऊपर से कॉमन ले लिया, के स्क्वायर नीचे से कॉमन ले लिया, के स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, वट एवर इज लेफ्ट इज दिस, और इस पर लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लगाओगे तो 1/2 आएगा, जो कि 0 नहीं है। सो डाइवर्जेंस टेस्ट कहता है कि नॉन जीरो लिमिट अगर जनरल टर्म की आ गई तो सीरीज डाइवर्जेंट है। whereas in the second part ये एक स्टैंडर्ड लिमिट है 1 plus 1/k raised to power k। इसकी लिमिट अगर आप ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, इसकी लिमिट जो है ई आती है। यू शुड नो हाउ टू गेट दिस लिमिट इक्वल टू ई। ई इज नॉट जीरो, सो दिस सीरीज इज आल्सो डाइवर्जेंट। तो मैंने यहाँ पे डाइवर्जेंस टेस्ट इस्तेमाल करना क्वेश्चन नंबर 5 और 6 में डिस्कस किया है। क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8 जिसमें हमसे कहा गया कि इंटीग्रल टेस्ट के जरिए गिवन सीरीज जो हैं उनका बिहेवियर डिस्कस करें। सो फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 7 बी है। तो 1/1 प्लस 9k स्क्वायर का फंक्शन बनाया, 1/1 प्लस 9x स्क्वायर, उसकी इंटीग्रेशन की, इम्प्रॉपर इंटीग्रल को सॉल्व किया तो पता चला इम्प्रॉपर इंटीग्रल जो है वो फाइनाइट आ गया। इसका मतलब इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्जेंट है, इसका मतलब है जो सीरीज दी हुई है वो भी कन्वर्जेंट है। और मैंने दरख्वास्त की क्वेश्चन नंबर 8 खुद सॉल्व कीजिए आप।
So this is a brief review of ये जनरल क्वेश्चंस हैं जिसमें डाइवर्जेंस टेस्ट कहीं लगेगा, कहीं आपको ज्योमेट्रिक सीरीज मिलेगी, कहीं आपको इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल करना पड़ेगा, blah blah blah. So that was all about what we discussed last time, uh, and all these files are uploaded on your LMS. Lectures are there on YouTube. We had to start with some more tests that are required to determine the behavior of given series. Uh, we are going to discuss at least three more tests. दो टेस्ट हम पहले पिछले आर्टिकल में डिस्कस कर चुके, डाइवर्जेंस टेस्ट और कॉची इंटीग्रल टेस्ट. हर टेस्ट हर सूरत हाल में काम नहीं करता. फॉर एग्जांपल डाइवर्जेंस टेस्ट के अंदर अगर जनरल टर्म की लिमिट 0 आ जाए तो अब सीरीज कन्वर्ज भी कर सकती है और डाइवर्ज भी कर सकती है. कॉची इंटीग्रल टेस्ट के अंदर प्रॉब्लम ये है कि आप अक्सर और बेशतर ऐसी इन्फिनिट सीरीज आएंगी जिनके जनरल टर्म को फंक्शन बनाओगे तो वो फंक्शन इंटीग्रेबल नहीं होगा. फॉर एग्जाम्पल मैं एक सीरीज लिख रहा हूँ. अब अगर मैं इसका फंक्शन बनाता हूँ तो फंक्शन क्या होगा? 2 raised to power x upon 2x फैक्टोरियल. अब 2 raised to power x का इंटीग्रल तो मैं निकाल सकता हूँ, लेकिन 2x फैक्टोरियल का इंटीग्रल नहीं निकाल सकता. Have you ever studied how to find the integral of x factorial? We don't know. तो इस सूरत हाल में मैं कॉची इंटीग्रल टेस्ट इस्तेमाल नहीं कर सकता. So I need to have some more tools developed in order to explore the behavior of some other infinite series. So first of these new tests is comparison test. Let us try to understand. मैं briefly इस chapter में जो tests हैं वो डिस्कस कर चुका हूँ कि इन टेस्ट का पर्पस क्या है और हम कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं. I think I can share. Can you see this blank page on your screen? Yes, sir. Okay. तो यहाँ पे इन ब्लैंक पेजेस में मैं जो मार्जिन में काम किया करते हैं वो, तो यहाँ पे हमने जैसे एक्सरसाइज 9.4 या आर्टिकल 9.4 में हमने कहा ज्योमेट्रिक सीरीज का बिहेवियर डिस्कस कर चुके, डाइवर्जेंस टेस्ट कर चुके, कॉची इंटीग्रल टेस्ट कर चुके, पी टेस्ट कर चुके. तो नया जो है इसमें हम कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करेंगे, लिमिट कंपैरिजन टेस्ट डिस्कस करेंगे, रेशियो टेस्ट डिस्कस करेंगे, रूट टेस्ट डिस्कस करेंगे. और इन तमाम टेस्ट की ब्रीफ में आपको दे चुका. हमारे पास कोई सीरीज है जिसके बारे में हम जानते हैं कि कन्वर्जेंट है, और हम एक ऐसी सीरीज टेस्ट का बिहेवियर टेस्ट करने जा रहे हैं जिसके बारे में हमें ये उम्मीद है कि वो कन्वर्जेंट होगी. देन अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है कि जिस सीरीज को हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी हर टर्म एक कन्वर्जेंस सीरीज की टर्म से छोटी है, तो हमारी जिस सीरीज का बिहेवियर हमें तलाश करना था यानी समीशन बी एन बी कन्वर्जेंट. लेकिन अगर ए एन डाइवर्जेंट है और हमारी सीरीज जिसको हम टेस्ट कर रहे हैं उसकी हर टर्म जो है इस डाइवर्जेंट सीरीज की हर टर्म से बड़ी है, तो फिर बी एन भी डाइवर्जेंट होगी. देयर इज अ लिमिट कंपैरिजन टेस्ट जिसमें हम
दो सीरीज लेते हैं, एक जिसको हम एक्सप्लोर कर रहे हैं, एक सीरीज जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसका बिहेवियर हम जानते हैं। तो ए एन अपॉन बी एन रेशियो हम कैलकुलेट करें और उस पर लिमिट एंड अप्रोच इनफिनिटी लगा दें। अगर ये रिजल्ट हमारे पास फाइनाइट आए और 0 से बड़ा आए, तो अगर ए एन कन्वर्जेंट है तो बी एन भी कन्वर्जेंट होगी, और अगर ए एन डाइवर्जेंट है तो बी एन भी डाइवर्जेंट होगी। किस केस में? जब ए एन अपॉन बी एन की लिमिट फाइनाइट आ जाए और पॉजिटिव। और रेशियो टेस्ट में हमने कहा कि एक सीरीज है, इस सीरीज की नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय प्रीवियस टर्म, इसकी लिमिट एन अप्रोच इनफिनिटी लें और वो लिमिट फाइनाइट आ जाए। If that limit is less than 1, the series is convergent. If this limit is greater than 1, the series is divergent. If the limit comes out to be 1, the test fails. So the root test is also having a similar situation, जिसमें हम जनरल टर्म की पावर 1/n लेते हैं और फिर उस पर लिमिट एंड अप्रोच इनफिनिटी लगाते हैं। So this is the brief preview of what we are going to explore now with all theoretical details. So where I was here. Now, this is a statement of comparison test. Un and Bn are positive or non-negative term series with the property that K series U or series B की term by term क्या relation है? Terms of the first series are always less than the terms of the second series. Then if the second series is convergent, the first series should also be convergent. यानी लार्जर टर्म की सीरीज अगर कन्वर्जेंट है तो स्मॉलर टर्म की सीरीज भी कन्वर्जेंट होगी। इसी तरह अगर स्मॉलर टर्म की सीरीज डाइवर्जेंट है तो लार्जर टर्म्स की जो सीरीज है वो भी डाइवर्जेंट। एंड हियर वी हैव डेवलप्ड अ प्रूफ ऑफ दैट। हमने अज्यूम किया कि वी एन कन्वर्जेंट है। अगर ये कन्वर्जेंट है तो जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम है वो भी कन्वर्जेंट है। सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम की जनरल टर्म जो है एस एन, that is the sum of n terms of the series. As n approaches infinity, this sum goes to some number, say s. Now, Vn is convergent, and we are given that terms of Un are all less than the corresponding terms of Vn. Let me correct this. So Vn is convergent, and we are given that every term in the series Un is less than the corresponding term of the convergent series. So अब U की जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स है उसको हमने नाम दे दिया Tn का, जिसमें U की फर्स्ट n टर्म्स ऐड हो रही हैं, और चूंकि V करस्पॉन्डिंग जो है वो सब U करस्पॉन्डिंग से बड़े हैं, इसका मतलब है Tn जो कि U की पार्शियल सम सीक्वेंस है और Sn जो कि V की पार्शियल सम सीक्वेंस है, उसके दरमियान रिलेशन क्या होगा कि Tn will be less than Sn. Now, Tn is a sequence of partial sums of Un, and we have seen that limit of Tn as n approaches infinity should be less than the limit of Sn as n approaches infinity, because the terms of this are less than are greater than this. इसकी लिमिट चूंकि s है, ये कन्वर्जेंट है, तो हम देख रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम of series Un is bounded above. और हमने सीक्वेंसेस में डिस्कस किया था कि अगर एक सीरीज सीक्वेंस बाउंडेड अबव है और साथ साथ इंक्रीजिंग भी है तो भाई Un इंक्रीजिंग क्यों है? इसलिए कि Un के एलिमेंट्स जो हैं वो नॉन नेगेटिव टर्म्स हैं। तो U1 will be less than U1 plus U2. Yes, Shifa, what you are saying?
Okay, all right. So we were saying that in this part we have reached the result that the sequence of partial sums of UN series is bounded above by the limit of sequence of partial sums of Vn. और हम ये देख रहे हैं कि जो सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स ऑफ यूएन है वो नॉन नेगेटिव टर्म्स से बनी है, लिहाजा पहला पार्शियल सम दूसरे पार्शियल सम से छोटा होगा, दूसरा पार्शियल सम तीसरे पार्शियल सम से छोटा होगा। इसका मतलब है सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स जो है वो इंक्रीजिंग है। इंक्रीज होने के बावजूद बाउंडेड अबव है, तो हमने सीक्वेंसेस में ये रिजल्ट देखा था कि वह सीक्वेंस इज बाउंडेड अबव एंड इंक्रीजिंग, so that should converge to some limit which is less than the upper bound. हम यहाँ से सिर्फ A और B से यानी कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स बाउंडेड अबव है और सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम इंक्रीजिंग है, इन दोनों से ये रिजल्ट डिड्यूस कर रहे हैं कि सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम्स Tn इज कन्वर्जेंट, इसका मतलब है Un इज कन्वर्जेंट। So all we have done here is using our knowledge what we have gained up to now about uh, sequence of partition, the infinite series, behavior of sequences. इस कंपैरिजन टेस्ट में हमने इस Vn को कन्वर्जेंट अज्यूम किया और देखा कि उसकी सीक्वेंस ऑफ पार्टीशन कन्वर्ज करेगी। उसके बाद एक्सप्लोर करना था हमने Un को, और Un की हर टर्म जो कि Vn की हर टर्म से कॉरस्पॉन्डिंग टर्म से छोटी है। Arham, yes, what you want to say? सर मैं ये पूछ रहा था कि तमाम जो सीक्वेंस आप पढ़ा रहे हैं तमाम नॉन नेगेटिव सीक्वेंसेस के लिए टेस्ट हाँ, होंगे, तो आप चारों पढ़ाएंगे टेस्ट? अभी इस आर्टिकल में नॉन नेगेटिव है। अगला आर्टिकल जो है उसके अंदर फिर प्लस माइनस वाली सीरीज है। ओके सर, ठीक है। So since the terms of Un are all less than the terms of Pn corresponding Vn, और Vn कन्वर्जेंट होने की वजह से उसकी पार्शियल सम सीरीज सीक्वेंस जो है वो कन्वर्जेंट है। तो पार्शियल सम sequence of UN will all be having terms which are less than the terms of the sequence of partial sum of P, which gives the fact that sequence of partial sums of UN is bounded above, and since UN is positive term, so उसके partial sum sequence जो है वो increasing होगी, and a sequence increasing and bounded above must be convergent. So Tn being convergent and Tn is sequence of partial sum represent the series Un, so Un is also convergent. With same logic, we have gone for assuming Un to be divergent, and I hope you can go through these simple steps. कि डाइवर्जेंट होने का मतलब, किसी सीरीज के डाइवर्जेंट होने का मतलब है कि उसकी कॉरस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ पार्शियल सम डाइवर्ज कर रही है और डाइवर्जेंट टू इन्फिनिटी है। अब UN की जो टर्म्स हैं, दे आर ऑल स्मॉलर देन द टर्म्स कॉरस्पॉन्डिंग ऑफ Vn। जब UN डाइवर्जेंट है तो Vn भी डाइवर्जेंट होगा क्योंकि Vn उससे बड़ी है। So that is that result is deduced in two steps कि पहले तो UN की पार्शियल सम की सीक्वेंस लिखी, Vn की पार्शियल सम्स की सीक्वेंस लिखी, एक का नाम Tn किया, एक का नाम Sn किया। Tn डाइवर्जेंट है, और जब Tn डाइवर्जेंट है दैट मीन्स लिमिट n approaches infinity of Tn is infinity, और Vn की जो सीक्वेंस है वो उससे बड़ी है, तो दैट इज नेचुरल के Sn जो है वो भी डाइवर्जेंट होगी। So that's it about comparison test, and कंपैरिजन टेस्ट का जो मैंने मैसेज आपसे डिस्कस किया इन ब्लैंक पेजेस में, now we have to put this to work, and to work out problem using comparison test हमारे सामने दो बातें अहम होनी चाहिए। एक सीरीज है जो हमारा क्वेश्चन होगा,
यानी वी आर टेस्टिंग दिस सीरीज, यानी क्वेश्चन हमारा जो हम एक्सरसाइज का एग्जाम्पल का देंगे उसको हम अगर ये नाम देते हैं, तो अब हमें एक ऐसी सीरीज, इसके बाद अंदाजा करना पड़ेगा कि गैस गैस किस चीज का, कि ये सीरीज कन्वर्जेंट हो सकती है या डाइवर्जेंट हो सकती है। तो फर्स्ट स्टेप इज गेसिंग स्टेप। अगर आपका गैस ये कि ये कन्वर्जेंट है तो उसको फिर कन्वर्जेंट सीरीज एक बना खुद से सेलेक्ट करेंगे और उससे कंपेयर करेंगे। अगर आपका गैस ये कि डाइवर्जेंट है तो फिर उसके साथ हम एक डाइवर्जेंट सीरीज सेलेक्ट करेंगे और फिर ये टेस्ट इस्तेमाल करेंगे। So with this tip, let us look at this. Can anybody suggest me that what is the maximum power of the unknown, yeah, n, in the denominator? एक कांस्टेंट है और एक n का फंक्शन है, तो n की पावर क्या है? Are people listening to the lecture or just waiting for the quiz? No, sir. We are listening. Okay, so what is the power of Yes, n sir, in we are the what is the power of n in the denominator? 1 by 2. Half. 1 by 2. So we recall p test. p test ने क्या कहा था? p test ने ये कहा था कि अगर p greater than, sorry, लेस देन और इक्वल टू 1 हो तो डाइवर्जेंट है, और अगर p की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो कन्वर्जेंट है। तो हमारा गेस वर्क क्या क्या कहेगा इस सीरीज के बारे में? सर डाइवर्जेंट। डाइवर्जेंट होनी चाहिए। Divergent. इसकी कंपैरिजन के लिए हम एक डाइवर्जेंट नॉन सीरीज लेते हैं और हमें पता है कि ये हार्मोनिक सीरीज जो है डाइवर्जेंट है। नाउ कंपैरिजन कैन बी डन इस पैरेलल तरीके से कि un और vn कैलकुलेट करते चले जाएं, n इज इक्वल टू 1, n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 300, 1000। एट टाइम्स हमारे कैलकुलेटर्स जो हैं वो बड़े नंबर्स के लिए जवाब देने से इनकारी हो जाते हैं। तो हमें क्लियर ट्रेंड नजर आ रहा है कि जो हमारा टेस्टिंग सीरीज है, जो हमारा क्वेश्चन है, उसकी हर टर्म जो है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज की टर्म से बड़ी है। So when Vn is divergent, Un should be divergent. तो या तो मैं इस तरह से टर्म बाय टर्म कैलकुलेट करके फैसला करूंगा, मगर हम देख चुके हैं कि कैलकुलेशन हमें डिसीव करती है, जिसकी वजह से हमने इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग के सिलसिले में एक टर्म इस्तेमाल की थी, इवेंचुअली इंक्रीजिंग या इवेंचुअली डिक्रीजिंग, यानी शुरू की कुछ टर्म सेटिस्फाई करें, उसके बाद ना करें, उसके बाद सेटिस्फाई करें। तो ये जो पैदल तरीका है, मैं इसको पैदल कह रहा हूँ, इट इज़ नॉट अ स्टैंडर्ड प्रोसीजर। स्टैंडर्ड प्रोसीजर है कि ज़रा हम वेरीफाई तो करें कि क्या वाकई UN इज ग्रेटर देन VN है। तो अब ये हमने इस UN को नीचे से 2 कॉमन एलसीएम लेके ऊपर ले गए, ये शक्ल आ गई 2/√n-1। हमने अज्यूम कर लिया कि ग्रेटर देन 1 है। उसके बाद अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करें, चूंकि ये डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, अगर n की वैल्यू 1 भी हो, कम से कम वैल्यू n की 1 है, तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, तो इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई करूँ। तो इस टर्म को इधर ले आया, इस टर्म को इधर ले आया, तो 2n इज ग्रेटर देन दिस। अगर ये -1 जो है इसको इस तरफ ले आऊँ तो 2n + 1। Now what do you say about this statement? Isn't it true for every n? देखो भाई, n will be greater than √n when n is greater than 1। ठीक है? What about 2n and 2√n? ये भी ट्रू होगा फॉर ऑल n
ग्रेटर देन 1, मगर हमारे पास लेफ्ट साइड पे 1 का इजाफा हो गया, ये -1 राइट का था, ये उठा के उधर ले गया। तो अब ये इट इज ट्रू फॉर ऑल एन, सारे पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। जब ये ट्रू है तो un इज ग्रेटर। तो दिस इज द एनालिटिकल मेथड which is more matured compared to this term by term calculation। यहाँ जब हम ये वेरीफाई करने गए तो हम एक सॉलिड रिजल्ट में पहुंचे कि जो हमेशा ट्रू होगा हर पॉजिटिव इंटीजर के लिए। ये चूंकि डिड्यूस हुआ है इससे, लिहाजा ये वैलिड हो गया फॉर ईच एन। और अब ये हो गया इन जनरल कि un is greater than vn for all n, since vn is divergent, un is, since vn is divergent, by comparison test un is also divergent. Now look at this. What's the general term? General term is 1 upon 2n square plus n. P test suggests कि convergent है। क्यों? डिनोमिनेटर में जो लार्जेस्ट पावर है वो क्या है? E की वैल्यू यहाँ कितनी नजर आ रही है? सर स्क्वायर। Yes. Now this is greater than 1 और P test कहता है कि greater than 1 के लिए कन्वर्जेंट होना चाहिए। यानी हमने गेस वर्क से ये मालूम किया कि गिवन सीरीज जो है वो कन्वर्जेंट होनी चाहिए। तो इसको मैं एक नॉन कन्वर्जेंट सीरीज से कंपेयर करूं, पी टेस्ट में हम देख चुके कि ये कन्वर्जेंट है। आप कहेंगे कि ये सिर्फ गेस वर्क क्यों है, जब पावर P2 मिल गई तो बस कन्वर्जेंट हो गया? नहीं, इसके साथ कुछ और भी लगा हुआ है। लिहाजा कन्वर्जेंट सीरीज को कंपेयर करना है मैंने एक ऐसी सीरीज से जो खुद भी कन्वर्जेंट हो लेकिन इस कन्वर्जेंट सीरीज से छोटी हो। अच्छा, नाउ लुक एट दिस। अब कि मैंने किस तरह बिल्डअप किया लॉजिक। ये गेस वर्क बता रहा है कि कन्वर्जेंट है। हमने कन्वर्जेंट सीरीज सेलेक्ट कर ली। उसके बाद हमें पता है कि किस चीज का मुकाबला होना है, इसका और इसका। तो हमने शुरू किया कि 2n स्क्वायर, भाई n स्क्वायर और n स्क्वायर तो बराबर होंगे ना, लेकिन 2n स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन n स्क्वायर। और अगर इस 2n स्क्वायर में मैं मजीद n ऐड कर दूं तो ये लेफ्ट साइड और बड़ी हो जाएगी। तो 2n स्क्वायर प्लस n इज ग्रेटर देन n स्क्वायर। तो इनके रेसिप्रोकल्स का क्या होगा? When I take the reciprocals, ये ग्रेटर के बजाय लेस देन आ जाएगा। Now this is representing a convergent series and this is my question series. My question series, every term is less than every term corresponding of a convergent series. So by comparison, my series in question is also convergent. So this is the way we use convergent comparison test. बीच में इनफॉर्मल प्रिंसिपल्स का जिक्र कुछ हुआ है, ये आप देख लीजिएगा, मैं इस पर डिस्कस नहीं कर रहा। आई एम गोइंग टू फोकस ऑन व्हाट, तो ये क्या हो गया? आई एम गोइंग टू फोकस ऑन एप्लीकेशन limit comparison test. The next is the limit comparison test, which I have already briefed you about. कि हमारे पास दो सीरीज हैं, कॉरस्पॉन्डिंग सीरीज की जो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म्स हैं उनकी रेशियो कंसिडर की, उस पर लिमिट लगाई की अप्रोच इन्फिनिटी, और वो लिमिट जो है वो अगर फाइनाइट और पॉजिटिव आ गई तो दोनों सीरीज का बिहेवियर सेम होगा। ये लगाते हुए भी मुझे गेस वर्क करना होगा पी टेस्ट के जरिए। ये वही सवाल है जो पहले हमने देखा था। यहाँ पे पी वैल्यू क्या है? लार्जेस्ट पावर ऑफ एन या के 1/2। तो हमारा गेस वर्क कह रहा है कि ये डाइवर्जेंट है। जब ये डाइवर्जेंट है तो हमने इसके साथ डाइवर्जेंट सीरीज सेलेक्ट की।
विच इज डाइवर्जेंट बाय पी टेस्ट डायरेक्टली, और फिर हमने इन दोनों के फॉर्मूलों का रेशो लिया, दिस डिवाइडेड बाय दिस, और उस पर लिमिट एन अप्रोच इन्फिनिटी लगा दिया। तो वी एन 1/this, तो रूट इसका रूट एन ऊपर आ जाएगा, एंड देन यू नो लिमिट फाइंडिंग मेथड्स, रूट एन और रूट एन उड़ा दिया, 1/1 + 1, and the limit comes out to be 1, which is finite and positive. इसका मतलब है जिन दो सीरीज की रेशियो ली है हमने, वो या तो दोनों डाइवर्ज करती हैं या दोनों कन्वर्ज करती हैं। हमारी टेस्ट जो थी वो इसकी बुनियाद पे थी, जो कि डाइवर्जेंट है, तो गिवन सीरीज भी डाइवर्जेंट। इसी तरह इस सवाल को भी मैंने दोबारा डिस्कस किया है, just to tell you that limit comparison test कैसे लगता है। We knew that this, we guessed that this series has to be convergent, so we selected a convergent series, took the ratio of un and vn, apply limit and approach infinity, and found the limit to be 1/2, which is finite and positive. So चूँकि ये टेस्ट, ये सीरीज जो है convergent थी, लिहाजा हमारी series in question is also convergent। रेशियो टेस्ट ब्रीफ कर चुका मैं आपको। पॉजिटिव टर्म सीरीज है हमारे पास, यहाँ पे सिंगल सीरीज है, और सिंगल सीरीज से ही हम डिसीजन डिड्यूस करने की कोशिश करेंगे। द ट्रिक इज के आप रेशियो लें दो कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ द सीरीज की, और उस पर के अप्रोच इन्फिनिटी लगाएं। जो भी लिमिट आए, अगर लेस देन 1 है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, अगर ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी है तो सीरीज डाइवर्जेंट है, और अगर ये लिमिट 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो गया। So you must try some other test. I repeat, दो consecutive terms की रेशियो लेनी है, नेक्स्ट टर्म ऊपर रखनी है, प्रीवियस टर्म नीचे रखनी है, के अप्रोच इन्फिनिटी लगाना है। अगर लिमिट लेस देन 1 आ गई तो सीरीज कन्वर्जेंट है, ग्रेटर देन 1 या इन्फिनिटी आ गई तो सीरीज डाइवर्जेंट है। अगर लिमिट 1 आ गई तो टेस्ट फेल हो गया, हमें कोई और टेस्ट लगाना पड़ेगा। Let us see how this is used. 1/n factorial. I cannot use Cauchy integral test here. General term is 1/n factorial. Next term will be 1/n + 1 factorial. Now 1/n + 1 factorial can be written as 1/n + 1 अलग किया, बाकी n factorial. Remember, 4 factorial is what? 4 × 3 × 2 × 1. That means 4 × 3 factorial. So n + 1 factorial is n + 1 × n factorial. Then un + 1/un. So un is 1/n + 1 × n factorial divided by 1/n factorial, तो नीचे से n factorial ऊपर चला जाएगा। So actually what was the first step? n + 1 × n factorial divided by 1/n factorial. So n factorial comes up. और ये स्टेप मैं डायरेक्टली कर दिया करूंगा, बार बार इस तरह की चीजें डिस्क्राइब नहीं करूंगा। तो un + 1/un, n फैक्टोरियल कैंसिल हो गया, बचा 1/n + 1। 1/n + 1 की लिमिट एज n अप्रोच इन्फिनिटी 0 विच इज लेस देन 1। इसका मतलब है मेरी गिवन सीरीज जो है बाई रेशियो टेस्ट। रेशियो टेस्ट कहता है कि लिमिट जो तुम ये निकाल रहे हो un + 1/un की, अगर ये लेस देन 1 आ रही है तो सीरीज कन्वर्जेंट है, रेशियो टेस्ट की वजह। Look at this example, n/2n। तो n + 1 क्या होगा, ऊपर n + 1 हो जाएगा, नीचे 2n + 1 हो जाएगा, जिसको मैं n + 1/2 × 2n, इसको ब्रेकअप कर दिया। What is un? Un is n/2n. So what shall be the ratio of the two? un + 1/un, un + 1 divided by n/. So we take the reciprocal, तो 2n ऊपर चला गया, n नीचे आ गया,
टू रेज टू पावर एन कैंसिल हो गया, 1/2 को अलग किया, बाकी जो है वो n प्लस वन अपॉन एन है, दैट इज 1 प्लस वन अपॉन एन। इस पर जब तुम लिमिट लगाओगे एन अप्रोचिंग इंफिनिटी, तो दिस पार्ट बिकम 0 एंड द रिजल्ट कम्स आउट टू बी 1/2 which is less than 1. That means this series is conversion by ratio test. Let us look at this example which is more complicated. ये किताब ने इंडेक्स के इस्तेमाल किया है, मेरी आदत है इंडेक्स एन इस्तेमाल करने की। चाहे के इस्तेमाल करूं वो भी नेचुरल नंबर है, चाहे एन इस्तेमाल करूं वो भी नेचुरल नंबर। तो यू एन जो है वो 2n फैक्टोरियल अपॉन 4 रेज़ टू पावर n, जबकि नेक्स्ट टर्म विल बी n की जगह n प्लस वन रखना है, तो 2 टाइम्स n प्लस वन होल फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 4 पावर n प्लस वन। Now this becomes 2n plus 2 factorial. This becomes 4 into 4 is to power n. फैक्टोरियल क्या होता है, जिस नंबर का फैक्टोरियल है उस नंबर को उससे छोटे नंबर, उससे छोटा नंबर, एंड तो इसमें से 2n plus 2 और 2n plus 1 हमने लिखा, बाकी रह गया 2n फैक्टोरियल, नीचे वाले को ऐसे रहने दिया। देन वी केम टू राइट डाउन un plus 1 upon un. So this whole thing is un plus 1 multiplied by reciprocal of un, 4 is to power n. 4 is to power n cancelled with green line and 2n factorial cancelled with blue line. What we are left with is the product 4n square plus 6n plus 2 upon 4. As n approaches infinity, this goes to infinity. इसका मतलब un plus 1 upon un comes out to be infinity, which is greater than 1. और रेशियो टेस्ट कहता है कि अगर लिमिट ग्रेटर देन 1 हो या इन्फिनिटी हो तो सीरीज डाइवर्जेंट है। Another example, k raised to power k upon k factorial, n raised to power n upon n factorial, अगली टर्म n plus 1 raised to power n plus 1 upon n plus 1 factorial, n plus 1 raised to power n plus 1 में से एक n plus 1 अलग किया, बाकी n plus 1 raised to power n अलग रहने दिया। n फैक्टोरियल n प्लस वन फैक्टोरियल में से n प्लस वन अलग किया और n फैक्टोरियल अलग रहने दिया। n प्लस वन ऊपर और नीचे से कॉमन कैंसिल हो गया, तो यू एन प्लस वन जो है वो बचा n प्लस वन रेज़ टू पावर n डिवाइडेड बाई n फैक्टोरियल। ये है यू एन प्लस वन, वेयर इज यू एन वॉज इसका रेसिप्रोकल n फैक्टोरियल अपॉन n रेज़ टू पावर n। तो n फैक्टोरियल तो कैंसिल हो गया, बाकी जो बचा वो n प्लस वन रेज़ टू पावर n अपॉन n रेज़ टू पावर n, जिसको एक ब्रैकेट में लिखें तो अल्टीमेटली 1 प्लस, यानी एक ब्रैकेट में लिखें तो पहले तो होगा n प्लस वन अपॉन n होल रेज़ टू पावर n, और फिर n प्लस वन अपॉन n को 1 प्लस वन अपॉन n रेज़ टू पावर n लिख सकते हैं। सो दिस इज अ नोन लिमिट एंड दिस गोज टू e as n approaches infinity. Now what is the as number 2.71 something, that means greater than 1. The limit of un plus 1 upon un comes out to be greater than 1. That means this series is divergent by ratio test. So that's all about ratio test, and let us look at root test. एक चीज बता दूं, ये जो दो तीन एग्जांपल्स हमने डिस्कस की हैं, इससे हमें एक चीज का अंदाजा होना चाहिए, wherever there are factorials involved, our intention will be think about applying ratio test. फैक्टोरियल्स के अलावा अगर वेरिएबल पावर्स आ रही हैं, कांस्टेंट रेज़ टू पावर k, so these are situations where we tend to use ratio test, except for the situation कि हमने एक सीरीज देखी और रेशियो टेस्ट लगाना शुरू कर दिया, ठीक ठाक चल रहा है रेशियो और लिमिट आ गई 1। अगर लिमिट 1 आ गई तो रेशियो टेस्ट फेल हो जाता है, तो फिर हम कोई दूसरा मेथड सोचेंगे एंड विल सी कि दूसरा मेथड सोचने के लिए क्या करना पड़ेगा। Even with announcement that I can take a quiz on anything what we have studied up to now,
out of around 80 plus students, the maximum attendance is 53. I am going to take this situation very, very seriously, and people will come to learn very soon. I invite all of you to keep their mics open and say whatever you want. But don't forget कि अभी अभी मैंने एक बहुत संजीदा बात कही है. I announce a quiz or I don't announce a quiz. If I don't announce a quiz, attendance is hardly 30 to 40. If I announce a quiz as I did today, the maximum attendance I noticed is on the अब देखो 52 से 55 हो गई और मेरा कोई मूड नहीं है कि मैं क्विज लूँ. क्यों? इसलिए कि वो जो मौजूद नहीं है वो रात को 12 बजे तक क्विज जमा कराते रहेंगे. फिर टीए का 3 दिन बाद मेरे पास से ईमेल आएगा कि सर वो कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि क्विज आज हम ले लें, तो क्या ले लूँ क्विज? I am not going to go into any such situation. I'm going to conduct a 40 marks midterm very soon, before Ramadan. और सब दूध को दूध पानी का पानी हो जाएगा क्योंकि मिड टर्म विल हैव टू बी सबमिटेड ऑन टारगेट ऑन एलएमएस. मैं वहीं पे चेक करके वहीं रिटर्न करूंगा. You attend class or not? You attend class under the pressure of quiz. I don't like you to attend the class. Lectures रिकॉर्ड करके सुन लेंगे, वो तो अच्छा, वो यूट्यूब पे चला गया. पिछले सेमेस्टर तक मैं अपने यूबीएल कह रहा हूँ, आईबीए रिसोर्सेज के ऊपर मैं शेयर करता था लेक्चर. मुझे पता नहीं चलता था किसने देखा नहीं किसने देखा. यहाँ मैं देख रहा हूँ कितने लोग लेक्चर्स देख रहे हैं. 15 से 16, 20, 25 अटेंडेंस है और लेक्चर व्यूज आ रहे हैं 16-17. इसके अलावा बाकी आधे लोगों को कोई फिक्र ही नहीं है. यू पीपल आर फिकरलेस एंड God forbid the situation develop हो रही है थर्ड वेव के साथ. Very soon all physical activities may be terminated completely in education. और जो मेरा शुरू से फैसला है कि मैंने मोबाइल ऑनलाइन टेस्ट लेना है, that will remain as it is. But online tests 40% in midterm and 40% in final, and there you will not be relieved for any extra time except for what you will be given. Anyways, so I was talking about ratio test strategy कि किस situation में हम ratio test इस्तेमाल करेंगे, and then root test, and you'll see that my speech will be rapidly increasing इसलिए कि मुझे इस चैप्टर को खत्म करके 2 चैप्टर और डिस्कस करना. एंड मेरा जो मिड टर्म है वो चैप्टर जो अभी तक हुए हैं 6 और 9 उस पर मुश्तमिल होगा. आई एम गोइंग टू अनाउंस द डेट्स वेरी सून. रूट टेस्ट, एंड if we have a positive term series, so root test does what? जो जनरल टर्म फार्मूला है, root test takes its power 1 upon k and then apply limit as k approaches. If this limit comes out to be less than 1, the series is convergent. If this limit comes out to be 1 or greater than 1 or infinity, the series diverges. But if this limit comes out to be 1, the test fails. Mostly we use this root test in a situation where a general term of the सर series. थोड़ा सा ऊपर स्क्रॉल कर दें. बस और नहीं सर बस हो गया. Yes, sir. thank you.
अच्छा ये तुमने अभी मुझसे कहा स्क्रॉल कर दें, क्या तुम नोट्स बना रही हो लेक्चर अटेंड करते वक्त? यस सर, वो बना रही थी मैं। यस सर, हम बनाते हैं नोट्स, हम पढ़ते हैं। देखें, जो लोग ये कर रहे हैं मुझे मालूम है दे विल बी गेटिंग गुड पे। मुझे मैं रिकॉर्ड तो नहीं रख रहा, लेकिन कुछ अंदाज़ा होता है कि कौन कौन जो है वो रेगुलर अटेंडी है। जो जो लाइव लेक्चर अटेंड करेगा उसके रिजल्ट यकीनन बेहतर होंगे, और जो लाइव लेक्चर अटेंड नहीं करेगा उन्हीं में वो लोग होंगे जो टाइम मार्जिन मांगेंगे, उन्हीं में से वो लोग होंगे जो कहेंगे जी हमारा इंटरनेट कनेक्शन खराब हो गया था, उन्हीं में से वो लोग होंगे जो कहेंगे जी हमारी पावर चली गई थी। शाहिद साहब बड़े नरम दिल है, शाहिद साहब बड़े कूल हैं, शाहिद साहब बड़े ये हैं, बड़े वो हैं। लोगों को पता नहीं है कि शाहिद साहब भी उस ग्रुप में मौजूद हैं, जिस ग्रुप पे कभी एक टीचर के बारे में कमेंट्स आ रहे होते हैं, कभी दूसरे टीचर के बारे में कमेंट्स आ रहे होते हैं। तो भारत, यस, आई एम lenient, आई एम फ्रेंडली, मगर बुढ़ा हो गया हूँ, किसी वक्त भी सटियापा तारी हो जाएगा। आई वॉज टेलिंग यू दैट रूट टेस्ट किस सिचुएशन में इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पे whenever we have a general term in which we have raised to power k and we apply root test, un is of this form, so un raised to power 1 upon n is used to get rid of this power n. Once you get rid of this power n, whatever is left उस पर लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी लगाएं। तो 4n माइनस 5 अपॉन 2n प्लस 1, तो ऊपर से भी n कॉमन, नीचे से भी n कॉमन, बाकी बचा क्या, लिमिट n अप्रोच इन्फिनिटी, ये दोनों जीरो हो गए, तो 4 अपॉन 2 विच इज 2 विच इज ग्रेटर देन 1, दैट मीन्स दिस सीरीज इज डाइवर्जेंट अकॉर्डिंग टू रूट टेस्ट। 1 upon ln something whole raised to power k, typical situation where we use root test. So un is 1 upon ln n plus 1 whole raised to power n. तो जब un raised to power 1 upon n लिया तो 1 upon ln of n plus 1 आया। As n approaches infinity, denominator becomes log of infinity, which is infinity, and that is 1 upon infinity, which is 0, which is less than 1. The root test is saying that when the limit comes out to be less than 1, the series is converged. Then there is exercise 9.5. In 9.5, we see that question number 1 and 2 क्या कह रहे हैं? Guess about the convergence or divergence of the series and confirm your guess using comparison test. यहाँ पे मैं guess करूँगा मैक्सिमम पावर डिनोमिनेटर में 2 है, पी टेस्ट सजेस्ट कि ये सीरीज कन्वर्जेंट है, इसको किसी कन्वर्जेंस से कंपेयर करूँगा, किस तरह से कंपेयर करूँगा, आई एफ टेस्ट। यहाँ पे एक डिनोमिनेटर में मैक्सिमम पावर 1 है, क्यों भाई? नेक्स्ट 9.5 अगली क्लास में क्यों करूँ? अभी मैं बता रहा हूँ कि मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ और इट विल बी वेरी रैपिड इन नेक्स्ट फ्यू लेक्चर्स। So looking at this general term, डिनोमिनेटर में k की पावर 1 है, p टेस्ट के हिसाब से दिस हैज टू बी डाइवर्जेंट। इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करके इस फॉर्म में लिखा, क्योंकि डाइवर्जेंट नज़र आ रही है तो इसको डाइवर्जेंट से कंपेयर करें, कंपेयर किया और कंपैरिजन की स्ट्रेटजीज इस्तेमाल की, ये एज्यूम करके कि ये जो सीरीज़ है जिसको हम, जो हमारे क्वेश्चन में है उसकी टर्म्स जो है वो एक डाइवर्जेंट सीरीज से बड़ी है, यानी 12 अपॉन 4k माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1 अपॉन k, क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखा तो 12k इज ग्रेटर देन 4k माइनस 1, और फिर हम अगर 4k को इधर ले आए तो 8k इज ग्रेटर देन माइनस 1, डेफिनेटली 8k is going to be positive all the time, so which confirms that uk is greater than vk.
Since Vk is divergent, so Uk is also divergent. अक्सर जो सवाल हैं मैंने सॉल्व किए हुए हैं. In each part, use comparison test to show that the series converges. In each part, use the comparison to show the series is divergent. Let me look at B. 4B. Now in 4B, I have k upon k raised to power 3 by 2 minus half. So kth term is this. Now इस kth term को मैं कैसे लिख सकता हूँ अगर मैं k को नीचे ले जाऊं? So what will be the look of the denominator? K power 3 by 2 upon k, which is k power half, minus 1 upon 2k. So what is the largest power of k in the denominator? K upon k raised to power 3 by 2 था minus half. ऊपर वाला k जो है वो मैं डिनोमिनेटर के डिनोमिनेटर में ले आया. So k power 3 by 2 minus half divided by k, that becomes k power half minus 1 upon 2k. I was asking k, what's the largest power of k in the denominator? हाँ, p टेस्ट क्या सजेस्ट करता है कि this should be convergent or divergent? जिसने ये सवाल किया ना सर, I don't understand how you brought the k down, उससे पूछो कि k upon 1 को क्या मैं 1 upon k नहीं लिख सकता? फजल मोहानी, क्या ये अलजबरा तुमने नहीं किया? कुछ सवाल जो है ना टीचर को गर्म करने के लिए किया है. So, इस तरह से मैं k को नीचे ले गया. k raised to power 3 by 2 minus half के नीचे k है, जिससे ये बना, जिससे नजर आया कि डिनोमिनेटर में k की लार्जेस्ट पावर 1 by 2 है, और 1 by 2 होने की वजह से p टेस्ट सजेस्ट कर रहा है कि दिस सीरीज हैज टू बी डाइवर्जेंट. तो डाइवर्जेंट के लिए हमने डाइवर्जेंट सीरीज सेलेक्ट की और फिर देखा, टेस्ट किया कि ये uk है और ये vk है. तो डाइवर्जेंट सीरीज से बड़ी टर्म्स आ रही हैं इसकी यूके की या नहीं, और हमने फिर इसको वेरीफाई किया अलजबरा से और देखा कि हाँ भाई ये तो सही है, ऐसा होना ही चाहिए. लिहाजा सिंस वीके इज डाइवर्जेंट, सो यूके इज आल्सो डाइवर्जेंट. यूज लिमिट कंपैरिजन टेस्ट, ये सबसे आसान है सिवाय इसके कि अलजबरा. जैसे अभी एक साहब को ये परेशानी हुई थी कि कहाँ चला गया और नीचे कैसे चला गया और क्यों चला गया, तो वो सारी हरकतें जो है वो इस किस्म के सवालात में होंगी. फॉर एग्जांपल फिफ्थ जो है, अगर मैं फिफ्थ के बारे में सोचूं, न्यूमरेटर से लार्जेस्ट पावर क्या है? न्यूमरेटर की लार्जेस्ट पावर है 2, और अगर मैं वो पावर कॉमन निकालूं तो रेस्ट ऑफ इट इज डिनोमिनेटर में. व्हाट इज द लार्जेस्ट पावर? सर 7. इसको कॉमन निकाल लो तो 8 प्लस 1 अपॉन k पावर 7 माइनस 8 अपॉन k पावर 8. So this cancels with this. वैसे तो मैं यहाँ भी कह सकता था डायरेक्टली, लेकिन नाउ डिनोमिनेटर में this whole thing is behaving as 1 upon 2, 4 upon 8,
when k is very very large, और 1 अपॉन बाहर जो किया मैंने ये 1 अपॉन k स्क्वायर 5 आ, ये इसलिए किया कि मैं इसको पी टेस्ट से कंपेयर कर सकूं। पी टेस्ट मुझे गैस के तौर पे इस्तेमाल करना पड़ता है अक्सर और बेशतर। So what's the power of largest power of k in the denominator? In this case, apparently it is 7, लेकिन 2 पावर ऊपर हैं, तो उसको सब्ट्रैक्ट करके सोचेंगे कि what is the largest। यही काम हमने असल में वहां किया था जहां हमसे पूछा गया कि k नीचे क्यों चले गया। ऊपर k की पावर 1 है, नीचे k की पावर 3/2 है, तो ओवरऑल डिनोमिनेटर में k की पावर हाफ है, यानी नीचे की लार्जेस्ट पावर और ऊपर की लार्जेस्ट पावर का डिफरेंस लें तो नीचे की जो लार्जेस्ट पावर बने। तो इन दिस केस द लार्जेस्ट पावर ऑफ द डिनोमिनेटर इज 5 और p, दिस इंप्लाइज दैट p इज 5 एंड p 5 का मतलब है ग्रेटर देन 1 पे कन्वर्जेंट होता है, तो दिस सीरीज हैज टू बी कन्वर्जेंट। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा किसी कन्वर्जेंट से। नाउ व्हाई आई हैव सेलेक्टेड दिस क्वेश्चन, I have selected this question for a particular reason. मैं going back to white page, clearing it, and then let me write down anything. 4n square minus 3n plus 5 upon 6n raised to power 7 plus 2n plus 1. अब मैं देख लूँगा कि कितना डिफरेंट है उससे। खासा डिफरेंट है और खासा सिमिलर भी है। अब हमने कहा कि हमारा जो गेस वर्क है वो हमें बता रहा है कि ये कन्वर्जेंट। नॉर्मली कन्वर्जेंट के लिए हम ये इस्तेमाल करते हैं, है ना। तो जरा un अपॉन bn, इसका मतलब है 4n स्क्वायर माइनस 3n प्लस 5 अपॉन 6n raised to power 7 plus 2n plus 1 into n square. That makes 4n power 4 minus 3n square plus 5 3n cube plus 5n square upon 6n raised to power 7 plus 2n plus 1. अगर मैं पावर्स कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा 4 माइनस 3 अपॉन n प्लस 5 अपॉन n स्क्वायर। नीचे से ऊपर से पावर 4 निकली, नीचे से पावर 7 निकली, तो कितनी बची नीचे? पावर 3। 6 प्लस 2 अपॉन n raised to power 6 plus 1 upon n raised to power 7. Now what's the limit? This goes to 0, this goes to 0, this goes to 0, this goes to 0. The rest is 4 by 6, but 4 by 6 into infinity goes to 0. Now, what's the limit comparison test saying about this scenario? Limit comparison test. Here it is. Limit comparison test requires limit to be positive.
और जो मैंने अभी वर्कआउट किया, मुझे पी टेस्ट से ये गैस है मेरा कि ये कन्वर्जेंट होना चाहिए। मैंने एक कन्वर्जेंट सीरीज की और UN अपॉन VN लेके लिमिट निकाली और लिमिट आ गई 0। तो हम कहेंगे कि लिमिट कंपैरिजन टेस्ट फेल। Now this failure occurred due to what? Due to survival of this term n raised to power 3. Can I select a convergent series and then apply limit comparison test using UN upon Vn, and I'm not left with anything here as a function of or a power of n? Can I make it different? Numerator is power 2 in the original series. 1 upon n square से कंपेयर किया तो न्यूमिनेटर में बिकम पावर आ गई 4 और n की मैक्सिमम पावर ऊपर और नीचे से कॉमन लिया तो नीचे पावर ओवरऑल बची 3. My question is that can I make a choice of a convergent series in which the power involved is such that ये n क्यूब न बचे? सर आप n पावर 5 ले सकते हैं ना, तो फिर वो n 4.6 power, आएगा. yes. So you have to think about that. And here in the solution, I said I'll be discussing question number 5. So instead of 1 upon n square, we take 1 upon n power 5, जिसकी वजह से जब मैं UK और VK का रेशियो लूंगा तो 1 अपॉन k स्क्वायर 5 जो है वो डिनोमिनेटर से ऊपर जाएगा और ये सेकेंड डिग्री पोलिनोमियल को k स्क्वायर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 डिग्री पोलिनोमियल बन जाएगा. And then we take x power 7 common from the numerator and denominator that cancel out, and we get the limit 1 upon 2. So since this series is a non-convergent series because of p-test, this series is also convergent because now we have got the limit qk upon vk positive greater than 0 as a k approaches infinity, and that completes the solution. So with this I terminate today's discussion. एक तो ये कि मैं next time I'll continue with this discussion on this exercise almost all through this exercise, because this is one of the most important exercises for midterm exam. And then I will move on to absolute alternating series. Just a quick preview. Now I'm talking about A1 minus A2 plus A3 minus A4, this kind of. So minus 1 raised to power n minus 1 into an. हम इसको ऑल्टरनेटिंग सीरीज कहते हैं. सबसे पहले तो ऑल्टरनेटिंग सीरीज टेस्ट है जो हमने अगले आर्टिकल में एक्सप्लोर करना है, जिससे हमें पता चलता है कि अल्टरनेटिंग सीरीज जो है यानी ऐसी सीरीज जिसका एक टर्म पॉजिटिव एक नेगेटिव एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, वो कन्वर्जन किन कंडीशंस पे होगा और कब वो डाइवर्जेंट होगा. तो एक चीज़ को हमने ये एक्सप्लोर करना है. उसके अलावा अगर मेरे पास अल्टरनेटिंग सीरीज है
तो उससे या मेरे पास ऐसी भी सीरीज आ सकती है A1 minus A2 minus A3 minus A4 plus A5 plus A6 minus A7. Now this is not alternating because sign is not alternating consecutively. एक पॉजिटिव टर्म फिर तीन नेगेटिव टर्म फिर दो पॉजिटिव फिर एक नेगेटिव. So this is not truly alternating. So whether we have an alternating series, so we have an alternating series test. Whether we have an alternating series or a series of positive and negative terms, so we have फिजा इकबाल, मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि चैप्टर 9 इस पर चल रहा है, दैट इज पार्ट ऑफ द मिड टर्म. उससे पहले हमने चैप्टर 6 किया है, आई थिंक. ज़ुहैर, मैं हर क्लास में रिवीजन कराता हूँ. आज घड़ी देख के मैंने 15 मिनट रिवाइज किया पिछला लेक्चर, और अगली दफा तुम घड़ी देख के मुझे बताना मैं कितनी देर रिवाइज किया पिछला लेक्चर. और तुम्हारी नस्ल जो मुझसे ये कहती है रिवाइज करें, every lecture recorded is present, available to you 24 hours. रिवीजन किस चीज का मांग रहे हो भाई? हाँ, रिवीजन मांग रहे हो, पता है किस चीज का? सर इम्पोर्टेंट क्या है? With this unfriendly remark, I terminate today's discussion. First of all, stop